Hello students, we have finished up to exercise 8.3. Now we are just ready to start 8.4, and to learn exercise 8.4 we need to learn some identities. Those identities were derived by me in lecture 1. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Identity may be modified as sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. This can be also modified as sin theta is equal to root under 1 minus cos square theta. This is the first identity. Also we can get cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. This implies that in next term we can find the value of cos theta by taking a square root on either side, which is cos theta is equal to 1 minus sin square theta and whole root under. Second important identity is sec square theta minus tan square theta is equal to 1. अगर हम इस tan स्क्वायर थीटा को उस साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. दिस कैन बी रिटेन एज sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. नाउ वी कैन राइट sec थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अगर 1 को इधर ट्रांसपोज करें तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड tan थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1. थर्ड आइडेंटिटी इज cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. अगर हम इस cot स्क्वायर थीटा को उस साइड में ले जाएंगे देन cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा. नेक्स्ट, अगर यहां से स्क्वायर हटाना चाहेंगे देन cosec थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा. अगर हम इसी 1 को इधर लाना चाहेंगे देन cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर यहां से स्क्वायर हटाना चाहेंगे देन cot थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1. tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा and cot theta is equal to cos theta upon sin theta. Similarly, we can say that tan theta is reciprocal of cot theta. Similarly, cot theta may be reciprocal of tan theta. So cot theta is equal to 1 upon tan theta. Now next identity is sin theta, which is reciprocal of cosec theta. We can also write cosec theta is equal to 1 upon sin theta. Similarly, sec theta is equal to 1 upon cos theta. We can also write cos theta is equal to 1 upon sec theta. In addition to these exercise, we should learn more identities, which is algebraic identity used in this lesson. For example,
we need to learn a plus b whole square, which is equal to a square plus 2ab plus b square. A minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square. A square minus b square is equal to a plus b into a minus b. Similarly, a plus b whole cube is equal to a cube plus 3ab a plus b cube, which in terms इसको और सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, एंड a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी minus b cube. In next term, we can simplify this to a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. These are the formula identity which we should learn to solve exercise 8.4. प्रश्नावली 8.4 प्रश्नावली 8.4 एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin A, sec A and tan A in terms of cot A. मतलब कि हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों को जो sin A, sec A और tan A है को cot A के पदों में व्यक्त कीजिए. मतलब इन सब को कॉट के टर्म में हमें लिखना है. तो फर्स्ट इज साइन ए, कॉसेक ए. साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए. नाउ कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. तो कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अगर कॉट को हम इधर ट्रांसफर कर दें, देन कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. जहां से स्क्वायर हटाना चाहें तो उधर को रूट हो जाएगा. मतलब कॉसेक ए इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. साइन ए को हम लिख सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन द वैल्यू ऑफ कॉसेक ए. हमने जो पता किया है कॉसेक ए का वैल्यू वो है रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. देन हमने साइन ए को कॉट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया. दिस इज द आंसर फॉर साइन ए. सेक ए को हमें कॉट ए में एक्सप्रेस करना है. तो सेक ए इज इक्वल टू, देन फॉर्मूला sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए एंड sec ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए अंडर रूट. अब हम tan को कॉट में एक्सप्रेस करेंगे. 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए. इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें तो हो जाएगा रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, जिसको रूट के बाहर अगर लिखें तो कॉट ए हो जाएगा. कॉट ए. नाउ सेक ए इज इक्वल टू कॉसेक. आंसर है सेक इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए.
Next part is tan A. To express tan A into cot A is very easy because tan A is equal to 1 upon cot A. This was the identity. So tan A is equal to 1 by cot A is the answer. Question number 2. Write all trigonometric ratios of angle A in terms of sec A. A के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो हमारे पास अवेलेबल है साइन ए, इसको सेक ए के टर्म में लिखना है। फर्स्ट साइन है, तो साइन ए कैन बी रिटेन एज रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी हमने पहले सीखा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। उसी आइडेंटिटी के सहारे हमने साइन ए फाइंड आउट किया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। नाउ रूट अंडर 1 माइनस कॉस का वैल्यू 1 अपॉन सेक होता है, सेक स्क्वायर ए। अब यहां से एलसीएम अगर लें तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू 1 इज 1 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर ए। इस सेक स्क्वायर ए को रूट से अगर बाहर लिखना चाहें तो इट इज रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक ए। तो आपने अभी साइन ए को सेक ए के टर्म में एक्सप्रेस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉस ए। तो दिस एक्सप्रेशन इज वेरी इजी बिकॉज कॉस ए डायरेक्ट कॉस ए का फॉर्मूला 1 अपॉन सेक ए होता है। तो दिस इज द आंसर ऑल्सो। थर्ड इज tan ए। tan ए इज इक्वल टू सेक ए बनाने के लिए फॉर्मूला है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस 1 को इधर ट्रांसफर कर लें और tan को इधर ट्रांसफर कर लें, एक साइड में tan चला जाएगा, देन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बचे। tan ए इज इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। नाउ फोर्थ पार्ट इज cosec A, अपोजिट ऑफ sin A इज cosec A। इसके लिए sin A का जो वैल्यू हमने निकाला है इसी को रेसिप्रोकल कर लेंगे, विच इज sec A अपॉन रूट अंडर सेक स्क्वायर A माइनस 1। फिफ्थ पार्ट इज sec A। sec A तो है ही हमारे पास। तो पार्ट इज cot A which is reciprocal of tan A is equal to tan A का रेसिप्रोकल, दिस इज 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। cot A is equal to 1 अपॉन रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। हम देखेंगे कि हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। थर्ड क्वेश्चन, इवैल्यूएट, मान ज्ञात करें। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 होल अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो हम इसमें से एक एक वैल्यूज को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक एंगल के रेशियो में चेंज कर देंगे। लाइक साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो अगर हम थीटा का वैल्यू 63 पुट कर देते हैं दोनों साइड में, देन साइन 63 इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 63।
इज इक्वल टू cos 27 डिग्री। सिमिलरली डिनोमिनेटर में cos को एक cos को चेंज कर देंगे तो लाइक cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तो थीटा के प्लेस पे 17 रखेंगे, cos 17 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 17 डिग्री, विच इज cos 17 डिग्री इज इक्वल टू साइन सब्ट्रैक्ट करके 73 डिग्री आएगा। तो साइन 63 का वैल्यू cos 27 है और cos 17 डिग्री का वैल्यू साइन 73 है। सारे वैल्यूज को यहाँ रिप्लेस करते हैं तो साइन स्क्वायर 63 के प्लेस पे cos स्क्वायर 27 लिखना होगा। cos स्क्वायर 27 प्लस इसको हमने एज इट इज छोड़ दिया, जैसा है वैसा ही छोड़ दिया है, साइन स्क्वायर 27 होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर 17 को चेंज कर दिया, साइन स्क्वायर 73 लिखना होगा। साइन स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 73 एज इट इज लिखना होगा। अब हम देखेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक और आइडेंटिटी की बात करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता। तो थीटा मतलब एंगल, अगर दोनों एंगल सेम हो तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इसके बजाय 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, सेम वैल्यू आएगा विच इज 1। 1/1 इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर हो गया 1, इवेल्युएट हो गया। अब इस टर्म को, एक्सप्लेनेशन को साइड वाइज रफ वर्क में आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा भाग, साइन 25 cos 65 cos 25 साइन 65। तो इसमें हम साइन को चेंज कर देते हैं और इस टर्म में cos को चेंज कर देते हैं। तो साइन 25 फॉर्मूला लिखते हैं, साइन 25 इज इक्वल टू cos 90 माइनस 25। देन साइन 25 इज इक्वल टू cos 65। नेक्स्ट लिखते हैं cos 25 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 25 विच इज साइन 65। cos 25 डिग्री इज इक्वल टू साइन 65 डिग्री। नाउ जो वैल्यूज हमने साइन 25 और cos 25 का निकाला है उसको यहाँ फीड कर दें। साइन 25 इज इक्वल टू cos 65 इंटू cos 65 प्लस cos 25 इज इक्वल टू साइन 65 और ये पोर्शन एज इट इज है, जैसा था वैसा है, तो साइन 65। देन नेक्स्ट में cos 65 इंटू cos 65 को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर 65 प्लस का साइन 65 इंटू साइन 65 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 65। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दोनों जगह सेम एंगल है, तो दिस इज इक्वल टू होगा 1। दिस इज द आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, प्रश्नावली 8.4 से फोर्थ क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर
चॉइस, सही विकल्प चुने और अपने विकल्प की पुष्टि करें। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने के बाद ए बी सी डी कौन सा आंसर है इसको सेलेक्ट करना होगा। इनको सॉल्व करते हैं तो 9 दोनों में है, टर्म में 9 कॉमन ले लें, देन सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और आइडेंटिटी आप देखेंगे, देन सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 1 विच इज 9। तो जो सही विकल्प है, राइट करेक्ट ऑप्शन इज बी विच इज इक्वल टू 9। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, इनको सिंप्लीफाई करने के बाद इनका ऑप्शन हम ढूंढेंगे क्या है। तो 1 प्लस tan थीटा, तो आइडेंटिटी हम लिखना शुरू करते हैं। 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, इंटू 1 प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉसेक थीटा इज 1 बाय साइन थीटा। इस 1 के नीचे 1 रख लें, इस 1 के नीचे 1 रख लें, और तीनों का एलसीएम ले लें, विच इज 1 cos थीटा का एलसीएम cos थीटा हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई cos थीटा, तो cos थीटा टाइम्स लगेगा, जिसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, cos थीटा, प्लस cos थीटा डिवाइड होके 1 होगा, तो यहाँ पर लिखना होगा साइन थीटा, फिर से cos थीटा डिवाइड होके 1 बचेगा, 1 1 जा 1। नेक्स्ट में एलसीएम साइन थीटा होगा, साइन थीटा जा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब इस क्वेश्चन के लिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को ए बना दें, ए सपोज कर लें, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हियर इज एन आइडेंटिटी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके बदले में न्यूमरेटर पे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस बी के प्लेस पे 1 है, 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। नेक्स्ट में इनको लिख सकते हैं होल स्क्वायर, ओपन करें, खोलें, ए स्क्वायर प्लस 2ab विच इज 2 cos थीटा साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर विच इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय cos थीटा साइन थीटा। अब ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दोनों का कलेक्टिवली आइडेंटिटी है 1। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा माइनस दिस 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा साइन थीटा। ये +1 -1 कैंसिल करने के बाद बचेगा 2 cos थीटा साइन थीटा विच इज इक्वल टू 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा cos थीटा
कैंसिल होकर के आंसर बचा 2। तो अब हम अपना ऑप्शन चेक करते हैं। द ऑप्शन इज सी पार्ट। लुक योर बुक and question number, second part of question number 4, the answer is part C. Answer is part C. Question number 2, answer option is part C, which is 2. Third part of question number 4, sec A plus tan A multiplied by 1 minus sin A is equal to, ये 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर हमें सेलेक्ट करना है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। sec A इज इक्वल टू 1 अपॉन cos A प्लस tan A इज इक्वल टू sin A अपॉन cos A इंटू 1 माइनस sin A। इनका एलसीएम ले लें, विच इज इक्वल टू cos A। तो न्यूमरेटर पर 1 प्लस sin A बचेगा, 1 प्लस sin A इंटू 1 माइनस sin A। तो फिर से आइडेंटिटी A प्लस बी इंटू A माइनस बी इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन cos A होगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर A आइडेंटिटी होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A डिवाइडेड बाय cos A। तो cos A is cancelled by 1 of cos A. Here cos A multiplied 2 times, so 1 time is get cancelled by this cos A. cos A 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, स्क्वायर है, तो एक बार cos A से कटेगा और न्यूमरेटर पे एक cos A बच जाएगा। दिस इज द ऑप्शन। तो सिलेक्ट योर ऑप्शन। हियर इज डी पार्ट। डी पार्ट इज योर करेक्ट आंसर। फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस tan स्क्वायर A प्लस अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर A। अब आप आइडेंटिटी वाले सेक्शन में जाइए, हमने सारे आइडेंटिटी को लिख रखा है और फिल कीजिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू होगा sec स्क्वायर A और 1 प्लस cot स्क्वायर A इज इक्वल टू होगा cosec स्क्वायर A। अगेन sec स्क्वायर A का रेसिप्रोकल sec का 1 बाई cos होता है, देन sec स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 बाई cos स्क्वायर A होल डिवाइडेड बाय cosec स्क्वायर A का रेसिप्रोकल 1 अपॉन sin स्क्वायर A। इन नेक्स्ट स्टेप जहां से हम रेसिप्रोकल फिर से करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर A इंटू sin स्क्वायर A अपॉन 1। तो अगर हम 1 को sin स्क्वायर A से मल्टीप्लाई करेंगे, देन आंसर होगा sin स्क्वायर A अपॉन 1 मल्टीप्लाइड बाई cos स्क्वायर A इज cos स्क्वायर A। फिर से आइडेंटिटी देखिए, sin A अपॉन cos A इज tan A, देयरफॉर यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर A। अब आंसर सिलेक्ट करते हैं ऑप्शन। द आंसर इज डी पार्ट। डी पार्ट इज आवर करेक्ट आंसर। डी पार्ट इज आवर करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। मतलब जहां जहां एंगल लिखा हुआ है
वो न्यून कोण है, एक्विट एंगल है। तो हमें प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो LHS से शुरू करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड विच इज कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो कॉसेक थीटा का वैल्यू लिखते हैं, इट इज 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा का आइडेंटिटी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, देन होल स्क्वायर। आप अगर इसका एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा बनेगा। साइन थीटा एलसीएम होगा विच इज 1 माइनस कॉस थीटा, न्यूमरेटर पे होगा, और होल स्क्वायर न्यूमरेटर पे और डिनोमिनेटर पे स्प्लिट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी फिर वापस लिखेंगे विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, सच दैट अब आगे चल करके इसको आइडेंटिटी जैसे यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। न्यूमरेटर है जैसा वैसा छोड़ देंगे, विच इज 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा एक बार है मल्टीप्लाई, और यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा इज मल्टीप्लाइड 2 टाइम, तो एक टाइम कट जाएगा, मतलब स्क्वायर काट देंगे, तो फाइनल आंसर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। अब हमने LHS को सॉल्व किया, वो RHS के इक्वल आ गया है, हैंस प्रूव्ड इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A इट इज इक्वल टू 2 sec A। तो हम LHS को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का प्रोसेस, दिस cos A मल्टीप्लाइड बाय cos A, मल्टीप्लाई करके यहीं पे लिखेंगे विच इज cos स्क्वायर A प्लस 1 प्लस साइन A मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन A इज इक्वल टू 1 प्लस साइन A होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे, हेयर 1 प्लस साइन A होल स्क्वायर, इसको हम A प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली ब्रेक कर सकते हैं। देयरफॉर दिस इज cos स्क्वायर A प्लस A प्लस बी होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू बी, 2 इंटू A इंटू बी प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर A होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन A
इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इन नेक्स्ट स्टेप अब देखते हैं आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। हमने कई एक बार इसको अप्लाई किया है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो ये दोनों मिलकर के जे और जे मिलके वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 प्लस दिस 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन है इज इक्वल टू 2 साइन है डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है। अब इसके बाद के स्टेप में दिस 1 प्लस 1 इज 2 प्लस 2 साइन ए होल अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में है इंटू कॉस ए। नेक्स्ट स्टेप टेक कॉमन 2 फ्रॉम दी टू टर्म्स। इन दोनों में से अगर 2 कॉमन ले लें तो 2 1 प्लस साइन ए होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो ऊपर में न्यूमरेटर में 2 फैक्टर है 2 एंड 1 प्लस साइन है, और डिनोमिनेटर में भी 2 फैक्टर है। कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर दें तो बचा न्यूमरेटर पे 2 और 1 कॉस ए कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉस ए। आइडेंटिटी फिर हम वॉच करते हैं। आइडेंटिटी 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू होता है सेक ए। तो हेयर 2 सेक ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ RHS। तो LHS एंड RHS इक्वल आ रहा है, हैंस प्रूव। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, tan A अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan A इज इक्वल टू 1 प्लस सेक ए इंटू कॉस ए के। हम tan A को और आइडेंटिटी में तोड़ेंगे। इट इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। इस अपॉन को यहां लिखेंगे और नीचे है 1 माइनस कॉट ए का आइडेंटिटी कॉस ए अपॉन साइन ए, प्लस का साइन कॉट ए का आइडेंटिटी कॉस ए अपॉन साइन ए हम यहां पर यूज कर चुके हैं। एंड दिस अपॉन इज केप्ट हियर, यहां पे रखेंगे। और 1 माइनस tan ए का वैल्यू साइन ए अपॉन कॉस ए जो यहां यूज किए थे, साइन ए अपॉन कॉस ए। अब यहां पर 1 लिख करके पहले इस पोर्शन को सिंप्लीफाई करते हैं एंड रिमेनिंग सेम पोर्शन रिमेन सेम, लाइक साइन ए अपॉन कॉस ए होल अपॉन, अगर एलसीएम लिया साइन ए यहां मल्टीप्लाई होगा, साइन ए माइनस 1 इंटू कॉस ए इज कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 इंटू साइन ए इज साइन ए। प्लस का साइन जहां है वहां लगाया हमने प्लस, और सिमिलरली इस पोर्शन को छोड़ दिया कॉस ए अपॉन साइन ए, और यहां से फिर सिंप्लीफाई करेंगे विच इज कॉस ए इंटू 1 इज कॉस ए माइनस 1 इंटू साइन ए इज इक्वल टू साइन ए
whole divided by 1 into cos A is cos A। अब हम यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में इस जगह से रेसिप्रोकल करके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इन नेक्स्ट स्टेप साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई साइन ए न्यूमरेटर पे जाएगा, साइन ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए। प्लस का साइन यहाँ आएगा, प्लस का साइन, ये साइन प्लस का यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट में कॉस ए अपॉन साइन है, कॉस ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाइड बाय इसका रेसिप्रोकल कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन है, कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं ये साइन ए माइनस कॉस ए यहाँ है और यहाँ कॉस ए माइनस साइन ए है। दिस इज इट इज enclosed in bracket. This sign is also used as a bracket. So this means this sin A minus cos A is enclosed in bracket. This also enclosed in bracket. So to be equal of this and this, अगर हम इसको cos A और sin A को रिवर्स लिखें तो यहाँ पे एक नेगेटिव आ जाएगा। प्लस के बजाय अदर देन प्लस यहाँ पे माइनस लिखना होगा जब हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में साइन स्क्वायर ए, साइन ए मल्टीप्लाइड बाई साइन ए इज साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए प्लस this is cos A square A, but cos A square A अपॉन ये है cos A माइनस साइन है। अगर इसको हम साइन ए माइनस cos A लिखना चाहें, साइन ए इंटू ब्रैकेट, अगर इसको रिवर्स करना चाहें साइन ए माइनस cos A, देन इसके बदले ये प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में बोथ द टर्म हैज कॉमन फैक्टर साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए दोनों ही टर्म में फैक्टर है, तो वी कैन टेक कॉमन। तो 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए टेकन common from both the term, then remaining term here sin A square A upon cos A, sin A square A upon cos A minus cos A square A upon sin A। In next step हम इसको एलसीएम लें और सिंप्लीफाई करें। 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए माइनस कॉस ए, दिस टर्म रिमेन सेम, इनटू साइन ए गेट मल्टीप्लाइड हेयर, इट इज साइन क्यूब ए माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए स्क्वायर ए इज कॉस क्यूब ए divided by cos A into sin A। In next step, we write this term same like 1 upon sin A minus cos A into
this this is a cube and this is b cube. We split this on the identity a cube minus b cube. A cube minus b cube is equal to a minus b bracket a square plus ab plus b square. Now a is assumed as sin a and b is as cos a. So here we can write sin a minus cos a. From here sin a cube minus b cube is sin a minus cos a into a square, sin a square a plus sin a cos a plus b square is cos a square a whole divided by cos a into sin a, cos a into sin a. Now sin a minus cos a, sin a minus cos a कॉमन टर्म डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में से कट के निकल जाएगा, बचेगा sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जिसका आइडेंटिटी होता है 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है. सिमिलरली sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 एंड sin ए कॉस ए, sin a cos a divided by cos a sin a और it is also sin a cos a. अब हम इस फ्रैक्शन को लिख सकते हैं 1 अपॉन दिस होल प्लस दिस होल अपॉन दिस होल. तो इट इज 1 अपॉन sin a इंटू cos a प्लस sin a cos a अपॉन sin a cos a, sin a cos a अपॉन sin a cos a. Both the terms at numerator and denominator are same. कॉमन टर्म कैंसिल होके 1 बचेगा और 1 अपॉन sin a का आंसर होता है cos a, cosec a. 1 upon sin a is equal to cosec a into 1 upon cos a is equal to sec a, sec a. Hence, this is the result plus this is 1. So 1 plus sec a into cosec a, इसको हम रिवर्स करके लिख लें. This is the answer. Hence proved. Fourth part, 1 plus sec a upon sec a is equal to sin a square a upon 1 minus cos a. तो हम LHS कंसीडर करते हैं. मोस्ट ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट solve this question on both sides and make equal answer. LHS is equal to RHS. You can consider only LHS and directly you may reach at RHS by my rule or by my side. So let us consider LHS, left part of the identity, which is 1 plus sec a. 1 plus sec a can be written as 1 plus 1 upon cos a. sec a का आइडेंटिटी होता है 1 upon cos a होल डिवाइडेड बाय sec a का वापस 1 upon cos a. इन नेक्स्ट स्टेप हम इसका एलसीएम लें 1 upon 1 cos a into 1 is cos a plus 1. तो हम राइट लिख सकते हैं 1 plus cos a
this 1 plus cos A upon this into this which is cos A, और इस टर्म को रेसिप्रोकल करके यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं विच इज cos A अपॉन 1। ये cos A कट गया तो बचा 1 प्लस cos A, और इस 1 को मिटाने के जगह हम छोड़ देते हैं। तो इन नेक्स्ट स्टेप हम इसको 1 प्लस cos A अपॉन 1 लिखते हैं, 1 प्लस cos A अपॉन 1। तो 1 को लिख सकते हैं 1 माइनस देन इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करते हैं। साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड साइन स्क्वायर ए, देन इस साइन स्क्वायर ए को आइडेंटिटी में ब्रेक करें, 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन दिस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इस 1 को आप समझ सकते हैं 1 स्क्वायर एंड 1 आर सेम थिंग, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। इन नेक्स्ट टर्म 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये स्टेप कॉमन फैक्टर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कट जाएगा। दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, which is your required result RHS, hence we can write here proof. Next question is fifth part of question number 5, which is cos A minus sin A plus 1 upon cos A plus sin A minus 1, this is equal to cosec A plus cot A। नाउ इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास स्पेशल स्ट्रैटेजी होना चाहिए, लाइक इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही अगर साइन से डिवाइड कर दें तो क्या होगा। हमारा स्ट्रैटेजी शुरू होता है इसको सॉल्व करने के लिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में साइन से डिवाइड कर दें, देन कॉस ए प्लस माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए, और कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय साइन ए। यहाँ पर हमारा कंसेप्ट ये है कि किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को एक साथ सेम क्वांटिटी से डिवाइड करें तो फ्रैक्शन के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। तो हमने बिना चेंज किए हुए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन से डिवाइड किया। नेक्स्ट, अब ये डिफरेंट टर्म्स है और डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। मतलब हम दिस होल अपॉन के बजाय कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। तो इन नेक्स्ट स्टेप हम लिख सकते हैं
cos A upon sin A, cos A upon sin A minus sin A upon sin A, sin A upon sin A plus 1 upon sin A होल डिवाइडेड बाई, फिर से इस फ्रैक्शन को भी अलग अलग लिख सकते हैं, विच इज cos A अपॉन sin A, cos A अपॉन sin A प्लस sin A अपॉन sin A माइनस 1 अपॉन sin A। अब हम इसको वापस आइडेंटिटी से देखते हैं, इसका मतलब cot A होता है, आइडेंटिटी cos A अपॉन sin A इज इक्वल टू cot A। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे cot A और sin A कट जाएगा, cot A, और इसके बाद इसको लिखेंगे 1 प्लस cosec A, 1 अपॉन sin A इज इक्वल टू cosec A, और इसके बाद इसको लिखेंगे sin A कटेगा, बचेगा -1, इसको हमने लास्ट में लिखा -1 होल डिवाइडेड बाय cos A अपॉन sin A इज cot A माइनस cot A माइनस 1 upon sin A which is minus cosec A and plus sin A upon sin A, कट के 1 बचेगा जिसको हम लास्ट में लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट आइडेंटिटी याद करते हैं, cosec स्क्वायर A आइडेंटिटी है cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 होता है। तो 1 के बजाय 1 के बदले इंस्टेड ऑफ दिस वन वी कैन राइट cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A। तो इस 1 को हटा करके यहाँ पर लिख सकते हैं cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A। अब हम इस टर्म में 1 मल्टीप्लाई इंक्लूड कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं कि दिस टर्म इज मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड दिस इज द फॉर्मूला A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। नेक्स्ट में हम लिखेंगे 1 इंटू cot A प्लस cosec A माइनस cosec A स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर। तो दिस इज cosec A प्लस cot A इंटू cosec A माइनस cot A। दिस इज द आइडेंटिटी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज A प्लस B इंटू A माइनस B होल अपॉन this cot A minus cosec A plus 1. We have two terms in numerator like cot A, cosec A एक टर्म है और सेकेंड टर्म यहाँ से स्टार्ट हो रहा। तो इन बोथ टर्म cot A प्लस cosec A इज कॉमन। इन दोनों ही टर्म में cosec A plus cot A कॉमन है, so we consider cot A plus cosec A common in both term, then first term leave 1 here and second term leave cosec A minus
cot A whole upon cot A minus cosec A plus 1. तो इन नेक्स्ट टर्म हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो cot A plus cosec A first factor into 1 minus cosec A एंड दिस निगेटिव मल्टीप्लाई करके निगेटिव में प्लस हो जाएगा तो इट इज cot A होल डिवाइडेड बाय cot A माइनस cosec A plus 1. This term and this term are alike things. 1 and 1 है माइनस cosec A माइनस cosec A, cot A and cot A. इट मीन्स कि दोनों टर्म alike है, सेम है, तो कॉमन टर्म है एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कट जाएगा तो बाकी के बचेगा cot A plus cosec A. दिस इज आवर फाइनल आंसर. द फाइनल आंसर देन इज cot A plus cosec A. cot A plus cosec A. Hence proved. Next is sixth part of question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 का छठा भाग 1 plus sin A upon 1 minus sin A whole under root इज इक्वल टू sec A plus tan A. तो हम LHS को सॉल्व करके RHS लाएंगे. तो फर्स्ट स्ट्रेटजी है कि LHS का जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनल बनाए. रैशनल बनाने के लिए 1 plus sin A अपॉन 1 minus sin A इंटू इसका अपोजिट साइन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं. अपोजिट साइन के साथ टोटल डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड ओवर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. देन इन नेक्स्ट टर्म दिस 1 plus sin A is written as 1 plus sin A whole square and this is A minus B into A plus B which is A square minus B square and here is whole under root. In next term we can write 1 minus 1 plus sin A whole square upon 1 square is 1. 1 minus sin square A is equal to cos square A. स्क्वायर अगर न्यूमरेटर पे भी है और डिनोमिनेटर पे भी है तो हम दोनों को सिंगल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं. लाइक इसके बाद वाला जो स्टेप है लिख सकते हैं 1 plus sin A अपॉन cos A. दोनों पे अलग अलग स्क्वायर था तो दोनों पे सिंगल स्क्वायर रख सकते हैं एंड ये सारी चीजें रूट अंडर के अंदर बन जाए. तो दिस होल रूट एंड होल स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट. ये दोनों कैंसिल होकर के जो बचेगा 1 plus sin A अपॉन cos A. इन नेक्स्ट स्टेप हम इस न्यूमरेटर को जो दो टर्म में डिवाइडेड है अलग अलग डिनोमिनेटर के साथ लिख सकते हैं. इट मीन्स 1 अपॉन cos A प्लस sin A अपॉन cos A.
अब आइडेंटिटी लिखते हैं 1 + 1 अपॉन cos A इज इक्वल टू sec A, whether sin A upon cos A is equal to tan A, which gives us required result RHS, hence proved. Next part is seventh part of question number 5. Sin theta minus 2 sin q theta upon 2 cos theta minus cos theta, which is equal to, we have to prove tan theta. तो सबसे पहले इन दोनों में साइन कॉमन ले सकते हैं. साइन थीटा इंटू इस टर्म में यहाँ पर 1 बचेगा, माइनस साइन निकलने पर 2 और साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, होल डिवाइडेड बाय इन दोनों टर्म में से कॉस थीटा निकाल देंगे इंटू कॉस थीटा निकलने पर इस टर्म में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा. अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, आंसर हमारा यहीं पे आ चुका है, विच इज tan थीटा. और रिमेनिंग जो बचा वाला टर्म है, दिमाग में ये रखिए कि ये कैंसिल हो जाएगा. हाउ? तो हम कैलकुलेट करते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन दिस 2 कॉस स्क्वायर थीटा. 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1. इन नेक्स्ट स्टेप tan थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन दिस 2 गेट मल्टीप्लाइड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दोनों में मल्टीप्लाई होगा. Therefore 2 multiplied by 1 is 2 minus 2 multiplied by sin square theta is 2 sin square theta minus 1. नेक्स्ट स्टेप में 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 1, विच कैन बी रिटन एज tan थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा divided by 2 minus 1 is 1, which is 1 minus 2 sin square theta, 2 sin square theta. This common term can be cancelled out and the answer is tan theta, which is our required RHS result, hence proved. साबित हुआ, सिद्ध हुआ. Here is 8th part of question number 5. Sin A is A and cos A is B. A plus B whole square is A square plus 2 into A into B plus B square, which is cos A square A, plus this is A plus B whole square, A square plus 2AB plus B square sec square A. नाउ ये sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A दोनों को मिलने से आइडेंटिटी बनेगा 1. sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A दोनों को कट कर दें तो लिखेंगे 1, प्लस सिमिलरली 2 sin A इंटू cosec A का आइडेंटिटी 1 अपॉन sin A प्लस cosec स्क्वायर A का आइडेंटिटी
कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस, ये हमने इंक्लूड कर लिया यहाँ पर, दिस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1. देन नेक्स्ट टर्म इज 2 cos a into, this is 1 by cos a, sec a is equal to 1 by cos a plus sec square a is equal to 1 plus tan square a. This is the identity for sec square a. In next step, we can cancel out sin a and sin a, and from here cos a and cos a कट जाएगा, तो बचेगा 1 plus 2, 1 plus 2 plus 1 plus cot square a plus 2 plus 1 plus tan square a. ये सारे क्वांटिटी ऐड कर दें. 1 plus 2 is 3, 3 plus 1 4, 4 plus 2 6, 6 plus 1 7. Then whole quantity number added to 7, सब मिलकर के 7 हो गया, प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए, which is our required result for RSS, and hence ये आइडेंटिटी प्रूव हुआ, सिद्ध हुआ, प्रूव्ड. 9th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट. cosec a माइनस sin a होल इंटू sec a माइनस cos a इज इक्वल टू 1 अपॉन tan a प्लस cot a. तो हम यहाँ से cosec का आइडेंटिटी 1 अपॉन sin a माइनस sin a इंटू sec a 1 अपॉन cos a माइनस cos a. LHS को हमने सॉल्व करने के लिए स्टार्ट किया है. इसका एलसीएम ले अगर, तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए होल इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए. अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए. एक साइन है कट जाएगा, कॉस ए और एक कॉस ए कट जाएगा, बचेगा कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए. अब इसको एलएचएस में लें और उल्टी डायरेक्शन में लें. एलएचएस में 1 अपॉन tan ए प्लस cot ए इज इक्वल टू 1 अपॉन sin ए अपॉन cos ए प्लस cos ए अपॉन sin ए इज इक्वल टू sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए अपॉन cos ए sin ए 1 अपॉन. तो नेक्स्ट स्टेप होगा, cos ए sin ए ऊपर चला जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इंटू cos ए sin ए अपॉन sin स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए नेक्स्ट स्टेप में दिस इज इक्वल टू 1. तो कॉस ए साइन ए अपॉन दिस इज इक्वल टू 1. तो दिस इज कॉस ए साइन ए. तो हम मान लेते हैं कि हमने कॉस ए साइन ए को इस तरीके से सॉल्व किया है और ये आया है. तो दिस इज द LHS. हमने स्टार्ट किया LHS और आ गया है RHS. हैंस प्रूव RHS. इसको हम यहाँ से कंटिन्यू मानते हैं कि कॉस ए साइन ए यहाँ पर है. कॉस ए साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए साइन ए अपॉन 1 लिख सकते थे और 1 को इस तरीके से लिख सकते थे. हेलो हेलो ओके. अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9th पार्ट. क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट. कॉसेक ए माइनस साइन ए होल इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन tan ए प्लस कॉस ए. तो हम यहाँ से कॉसेक का आइडेंटिटी 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए. LHS को हमने सॉल्व करने के लिए स्टार्ट किया है. इसका एलसीएम ले अगर तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए होल इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए. अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए. एक साइन है कट जाएगा. कॉस ए और एक कॉस ए कट जाएगा. बचेगा कॉस ए इंटू साइन ए. कॉस ए इंटू साइन ए. अब इसको LHS में लें और उल्टी डायरेक्शन में लें. LHS में 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए. साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए साइन ए 1 अपॉन. तो नेक्स्ट स्टेप होगा कॉस ए साइन ए ऊपर चला जाएगा. इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 इंटू कॉस ए साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए. साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए नेक्स्ट स्टेप में दिस इज इक्वल टू 1. तो कॉस ए साइन ए अपॉन दिस इज इक्वल टू 1. तो दिस इज कॉस ए साइन ए. तो हम मान लेते हैं कि हमने कॉस ए साइन ए को इस तरीके से
सॉल्व किया है और ये आया है। तो दिस इज द LHS, हमने स्टार्ट किया LHS और आ गया है RHS, हैंस प्रूव RHS। इसको हम यहाँ से कंटिन्यू मानते हैं कि कॉस साइन है, यहाँ पर है कॉस साइन है इज इक्वल टू कॉस साइन है अपॉन 1 लिख सकते थे और 1 को इस तरीके से लिख सकते थे एंड सो ऑन। टेंथ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो हम इसके LHS को सॉल्व करके सीधे tan स्क्वायर लाने के लिए कोशिश करते हैं। तो दिस 1 प्लस tan स्क्वायर आइडेंटिटी सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए एंड सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस, देन 1 बाई कॉस स्क्वायर ए होगा डिवाइडेड बाय कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर ए, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से रेसिप्रोकल करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। ये फर्स्ट रिलेशन प्रूव हुआ। सेकेंड रिलेशन के लिए सेकेंड रिलेशन को फिर से हम इसके इक्वली प्रूव कर देते हैं। 1 माइनस tan ए का 1 माइनस tan ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप इनका एलसीएम ले लें, कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए अपॉन दिस इज साइन ए प्लस कॉस ए होल डिवाइडेड बाय साइन ए होल स्क्वायर। देन यहां से रेसिप्रोकल कर ले, तो कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए देन होल स्क्वायर। दिस साइन ए अपॉन कॉस ए इज tan ए and cos a minus sin a upon sin a minus cos a into sin a upon cos a is tan a then whole square. In next step, this whole square into tan square a, cos a minus sin a upon sin a minus cos a whole square into tan का स्क्वायर बाहर निकल जाएगा tan स्क्वायर ए। नाउ होल स्क्वायर ऑफ दिस cos a minus tan a sin a, होल स्क्वायर ऑफ cos a minus sin a अपॉन होल स्क्वायर ऑफ sin a minus cos a into tan स्क्वायर
A. Now this both are same as A minus B whole square is equal to B minus A whole square. तो ये दोनों कैंसिल होकर के आंसर बचेगा tan स्क्वायर A, which is the result for RHS. Hence proved. दोनों पार्ट हमने प्रूव कर लिया.